برسوں کا بھروسہ الوان پینٹس، جہاں لگ جائے وہاں کوئی اور نہ ٹک پائے. ملٹی کلر رینج، اسموتھ فنش، ڈیوریبل ریزلٹ، فائن سلک سیمی پلاسٹک ایملشن، ٹاپ کوٹ ویدر شیلڈ، سنتھیٹک انیمل، ہائی اسپارکل میٹالک، واٹر میٹ، اسٹین فری. تو سجائیے اپنی دنیا الوان پینٹس کے رنگوں سے. الوان پینٹس، ہیلدی ہوم پینٹ. مسکان آرٹ اینڈ بیوٹی کالج کی زیر انتظام لاہور کاہنہ کے علاقے میں ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات اس وقت کامران علی وہاں پر موجود ہیں. جی کامران علی، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. ہاں جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسکان آرٹ کالج اور الائنس کی سی ای او، جو کہ اس معاملات کو، آج کے پروگرام کو آرگنائز کرانے میں ان کا ایک اہم کردار ہے. ان سے گفتگو کریں گے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا اور خصوصاً بے روزگاری کو جو ختم کرنے کے حوالے سے یہ کیا اقدامات کر رہی ہے. جی میڈم، آپ مجھے بتائیں اس حوالے سے کہ خواتین کے لیے جو آپ یہ اقدامات کر رہی ہیں کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ سر اتنا ہی ضروری ہے جیسے روٹی ضروری ہے، کیونکہ گھر کی خواتین جب نکلتی ہیں ظاہر ہے اپنے سارا کچھ ورک کر کے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے کے لیے بہت روزگار بناتی ہیں، تو اسی لیے ان کا نکلنا بھی بہت ضروری ہے کہ اپنی گھر کے چولہا چلائیں، کچھ کریں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پارلر سے بھی نکل کے لوگ آئیں تاکہ ان لوگوں کو بھی لوگ جانیں اور آگے سے آگے وہ اپنے کام کو امپرومنٹ ملے. اچھا یہ بتائیں، آپ ورک شاپ کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ کس چیز کے لیے تھا؟ جو بے روزگار لڑکی ہیں ان کو اس فیلڈ میں آنے کی دعوت ہے، یا جو جن کے پاس ٹیلنٹ تھا اس کو شو کرنے کے لیے آپ نے یہ پروگرام کیا؟ ایسا ہی ہے سر، آپ ہمارے اس میں ورک شاپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بڑے سے بڑے پارلر کے بھی لوگ ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی ہیں. ہم نے سب کو اکٹھا کیا، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم چھوٹے پارلر سے بھی ہیں، تاکہ وہ آگے سے آگے ابھرنے کی کوشش کریں، آگے نکلیں، اپنے آپ کو یعنی کہ روزگار کے لیے اچھے سے اچھا موقع. کتنے عرصے کے بعد آپ اس طرح کا پروگرام آرگنائز کراتی ہیں اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ سر یہ ہماری ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا جیسے آج بھی یعنی ورکنگ ہے، یہ ویڈنگ سرمنی کے دن ہے، تو لیکن ہم لوگ لے کر آئیں گے کچھ سیکھنے کو ملے لوگوں کو، کہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی بیوٹیشنز ہوتی ہیں ان کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بیس پڑ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے سینئر ساتھ ہیں کہ آپ پوچھو تاکہ ہمارا کام آگے سے آگے اور اچھا ہو سکے. کام جو ہے اس کو بہترین کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور چونکہ شادیوں کا سیزن ہے اسی حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اور اس طرح کے پلیٹ فارم، اس طرح کے سیمینارز کا جو انعقاد ہے وہ میڈم کی جانب سے جو ہے وہ سیزنلی کیا جاتا ہے، جس میں بے روزگار لڑکیاں بھی حصہ لیتی ہیں، اور اسپیشلی جو لڑکیوں کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ بھی شو کرتی ہیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہمارے پاس یہ فن ہے اور لوگ اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے. اور لوگوں سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم جی، میں کپس کالج کانا کیمپس کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور خواتین کی جو ایجوکیشن ہے آج کل کے دور میں وہ بہت ضروری ہے، اور کپس کالج کانا کیمپس جو ہے اسی تشنگی کو پورا کرتے ہوئے طلباء میں اور خاص طور سے طالبات میں، خواتین میں انڈر گریجویٹ پروگرامز، ماسٹر پروگرامز اور بہت سارے انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز ہیں جو انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور اس کے پلیٹ فارم سے بچے تعلیم حاصل کر کے تو آگے اپنی منزل کی جو دوریاں ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں. سر آپ تو آج کل تعلیمی شعبہ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رٹے لگوا رہے ہیں، کپس کالج جو ہے وہ کوئی فزیکلی یا کوئی سکلز کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے؟ سر جی، جو کپس کالج ہے اس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ ہے کنسیپٹ بیس اسٹڈی. رٹا پاس بھی نہیں آنے دیتے، انٹرمیڈیٹ ہو یا 9th-10th ہو، ان کی اپنی پبلش کی ہوئی بکس ہیں، اور بچہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے اور وہ پرسنلی فیل کرتا ہے کہ میں اچھا لرن کر رہا ہوں. یعنی کپس کالج کا بچہ جب اپنے ٹیچر کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کرتا ہے اور اپنی تعلیمی سرگرمیاں ان کو بتاتا ہے، تو بہت سارے بچوں کے یہ ریمارکس ہوتے ہیں کہ کپس کالج کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کپس کالج کانا کیمپس میں جو اساتذہ ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ گھول کے تو پلایا نہیں جا سکتا، لیکن ایسے چمتکار کپس کالج کانا کیمپس میں ہو رہے ہیں. اساتذہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ بچوں کو رٹائزم سے بہت دور کر کے ان کی جو اسٹڈی میں ان کے جو کنسیپٹ ہیں ان کو کلیئر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بچے اس سے بہت سیکھ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے، اور آج میں نے یہ کلاس اٹینڈ کی میم سائمہ ناز کی کلاس، اور مجھے یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میم سمن راشد کے ریفرنس سے میں اس کلاس کو اٹینڈ کیا جو یہاں
न्यू टेक्निक सीखने को मिली और इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करें। इस अर्निंग के लिए कैसा काम है ये? अर्निंग के लिए ये बेस्ट प्रोफेशन है। इस तरह से गर्ल्स अपने आप को आगे जिस तरह प्रमोट कर सकती हैं, बहुत ज़रूरी है गर्ल्स इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और होना चाहिए ये सिस्टम। पाकिस्तान के शोबा में ये सबसे बेस्ट फील्ड है कि लड़कियों के लिए ख़वातीन किस हद तक खुद मुख्तार हो सकती हैं इस शोबे को अपना के? गर्ल्स को बहुत हद तक, मतलब ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप किसी पे इन्हिसार नहीं कर सकती। इस फील्ड में आके आप अपना प्रोफेशन ज्वाइन करें और खुद अर्निंग कर सकती हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये ब्यूटिशियंस की लाइन में। थैंक यू सो मच। ऐसे इक़दाम का और ऐसे प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, आपको पता है कि आजकल तो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, एक तो कोविड का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो कह लें कि एक परेशानी थी, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा और जो परेशानी है जिसकी वजह से जो लोग हैं मेरा ख्याल है वो ख़ुदकुशी करने पर आ चुके हैं, और वो है महंगाई। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो अच्छे और पढ़े लिखे और अमीर घराने भी हैं वो भी मुश्किलात में हैं, और हमारे जो गरीब हैं वो तो और ज़्यादा पिसे हुए हैं। तो आजकल का ये जो हमारा सूरत चल रही है और आज का ये जो प्रोग्राम है जिसमें ख़वातीन को बाहुनर बनाना और बाइख्तियार बनाना, ताकि वो अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मुआशी तौर पर मुस्तहिक हो सके और अपने ख़ानदान के लिए कोई सपोर्ट कर सके। फादर जेम्स चैनल्स के हवाले से देखा गया है कि वो बहुत मुतहरिक हैं और इस तरह के जो इक़दामात हैं वो बड़े बढ़ चढ़ के लेवल पे, पीस सेंटर भी इसीलिए जो है वो काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज को मैसेज के हवाले से? हाँ जी, आज फादर जेम्स चरण ओपी जो कि पीस सेंटर लाहौर के डायरेक्टर हैं, आज भी उनका जो मैसेज था, जो पैगाम था तमाम ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर तमाम मुआशरे के लिए, वो यही था कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को हुनर सिखाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपने घर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उनके जो बुनियादी हक़ हैं वो उन्हें देने चाहिए, क्योंकि अगर आज ख़वातीन अपनी बहन या बीवी एक अपने आदमी के साथ काम करती है तो वो एक ख़ानदान को सपोर्ट करती है। आज ऐसा हालात रह नहीं गए कि एक बंदा कमाए और पूरे ख़ानदान के अफराद खाएं। आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमें अपनी ख़वातीन को मौक़े देने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये हुनर के ज़रिए उनके अंदर टैलेंट है और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा, और ताकि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ हुनर सीखें और अपनी ज़िंदगी को कम से कम वो मजबूत बना सकती है, अपनी ज़िंदगी को वो बदल सकती है और अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती है। थैंक यू कामरान, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि हुकूमत को भी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से औरतों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमें चाहिए कि हम मिलकर, हुकूमत और हम सब मिलकर जो है वो अपने इस काम को बढ़ाएं, ताकि ऐसे सेमिनार जो है मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे होने चाहिए, और बल्कि डे बाय डे इन कामों को आगे लेकर चलें, ताकि हमारे मुआशरे के जो ख़वातीन हैं वो भी अपनी जो कारकर्दगी है, जो अपने उनके अंदर की जो सलाहियतें हैं वो सारी दूसरों तक पहुंचा सकें। क्योंकि देखें, अगर आज हमारे मुआशरे की ये लड़कियां पॉलर्स के लिए और सिलाई सेंटर्स के लिए हम उनकी जो है उनको साथ लेकर चल रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि इसी तरह से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर हुकूमत हमारे साथ होगी तो फिर तो उस कहीं ज़्यादा जो है ये हम काम को जो है वो बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि अभी हम अकेले हैं। जब हुकूमत होगी तो फिर और बेहतर तरीके से हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चियों के लिए स्पेशली जो है वो अपने इस मुआशरे में जो है उनको एक बाइज़्ज़त मकाम दे सकते हैं। लाहौर श्री कृष्णा मंदिर में दिवाली की तकरीब का इनेकाद जोशो खरोश से जारी। मज़ीद तफसीलात इस वक्त कामरान अली दिवाली की तकरीब में मौजूद हैं। जी कामरान अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? का जन्म स्थान ननकाना साहिब में भी पैगंबरे इस्लाम का जश्न विलादत मनाया गया। हम ये बात दावे से कह सकते हैं, अगर दुनिया ने बैनुल मज़ाहिब रवादारी का अमली मुजाहरा देखना हो, कृष्णा मंदिर में हमारी हिंदू बरादरी अपनी मजहबी रसूमात के साथ इस दिवाली की तकरीब को, हमारी हिंदू बरादरी अपनी इस तकरीब को सेलिब्रेट कर रही है। और आज का ये स्टेज इस बात का बयन सबूत है कि हमारे मोहतरम जनाब एजाज आलिम कृष्णा मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहब एजाज ऑक्सन साहब और राज अब्बास साहब और एडिशनल हमारे राना शाहिद सलीमी साहब
मैं समझती हूँ कि ये हमारे वो बाजू हैं, वो हमारा गुलदस्ता है, जिन्होंने आज हर त्यौहार को, हर खुशी को, हर मसलक के कहते हैं ना कि इंटरफेस के हर उस चीज़ को सामने उजागर करके खड़ा कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि आए मिलकर पाकिस्तान के उस बाबा कायद के झंडे का एहतराम कर। कहती हूँ कि तमाम वो हिंदू कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, आज इस दिवाली के त्यौहार को खुशियों से मना रही है। तो पुरअमन तरीके से हम इसी तरह मनाएं ताकि हमारे दुश्मनों को जो दांत है वो खट्टे करके हम यहाँ से भेजें, क्योंकि बिना पाकिस्तानी हमें हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा ईमान, हमारा इत्तेहाद यही सिखा रहा है कि आए। और जो कहते हैं कि पाकिस्तान से भाग जाए यहाँ से, तो मत ऐसी कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को मिटा। आज बिल्कुल पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इसका सबूत इस बात से मिलता है कि यहाँ पर ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो, दिवाली हो, राखी बंधन का हो त्यौहार, इसके अलावा क्रिसमस या ईस्टर, कोई भी त्यौहार हो उसको बड़ा पुरअमन तरीके से जो है वो मनाया जाता है। हमारे साथ एक सोशल वर्कर मौजूद हैं जिनका मुस्तकबिल में सियासत में भी आने का प्लान है, इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या कहना चाहेंगी। जी हमारा आप बताएं मुझे, आप इस हवाले से आज क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू 44 न्यूज़, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और आपके कि आप हर जगह पे पहुंचते हैं। और पाकिस्तान में इस तरह के और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होने चाहिए, हमें इन्हीं फेस्टिवल्स पे मौका मिलता है इकट्ठे होने का। तो हैप्पी दिवाली एवरीवन और पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बिल्कुल पूरी दुनिया की तरह आज पाकिस्तान में भी और खुसूसन लाहौर में भी जो है वो दिवाली नहायत जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर तमाम मजहबी जमातों को और मजहबी हम आहंगी को मुकम्मल आज़ादी जो है वो हासिल है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे आज के दिन के हवाले से, ये क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताएँ दिवाली के हवाले से क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे। जी हम लोग आज बहुत खुश हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। पाकिस्तान में अपना मिलकर दिवाली का त्यौहार बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके, हम पारसी सब खुशियाँ दिवाला करते हैं, सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू कामरान, मैं बड़ी जो है वो शुक्रगुजार हूँ जो है इस वक्त के लिए जो हम कायदे आज़म के पाकिस्तान में सब खुशहाली के साथ और बड़े पीस और अमन के साथ हर त्यौहार को, कोई भी त्यौहार हो हमारी तरफ से, क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद मिलादुल नबी हो, और हर तरह से आपने देखा है कि हमने हर त्यौहार को बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाया है। और इंशाल्लाह हम अपने इन त्यौहारों को इसी तरह से अपने सारे बहन भाइयों के साथ मिलकर हमेशा ये खुशियाँ बांटते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कसूर रोड दीपालपुर कार एक्सीडेंट 1122 वालों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसमें अब्दुल्ला नामी काफी सीरियस हालत में था। फर्स्ट एड के बाद DHQ अस्पताल उकाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा गया। दीपालपुर से चौधरी न्याज अहमद सहू की रिपोर्ट के मुताबिक और उस्मान अबू बकर कामरान को फर्स्ट एड दी गई। गाड़ी में मौजूद लोग 29 डी कलियांवाला और 38 डी के रिहायशी बताए जाते हैं और मरने वाला मोहम्मद अब्दुल्ला दीपालपुर के निवाही गांव इस्लामपुरा का रिहायशी है। शहरी लाहौर में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात थम न सके। अलिशबा नामी खातून को पार्लर जाना महंगा पड़ गया। खबर शामिल करेंगे लाहौर मोहम्मद अजमल जट से। मनावा के इलाका फाहा टाउन के रिहायशी लड़की ब्यूटी पार्लर जा रही थी कि मुतासरा लड़की को ब्यूटी पार्लर जाते हुए उस्मान और सलमान नामी लड़कों ने रास्ते में रोककर छेड़छाड़ शुरू कर दी। मुलजिमान लड़की के मना करने पर लड़की को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीस फातिमा चौधरी का नोटिस थाना मनावा में मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नदीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जर्सी। जी अजमल बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, शहर लाहौर में खवातीन को हरासा करने के वाकयात में कमी ना आ सकी। मनावा के इलाका फाहा टाउन की रहायशी लड़की अलिशबा को ब्यूटी पार्लर जाना महंगा पड़ गया। अलिशबा ब्यूटी पार्लर जा रही थी कि रास्ता में दो उबाश लड़कों ने इसका रास्ता रोक लिया और हरासा किया। लड़की के मना करने पर उस्मान और सलमान नामी मुलजमान ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। थाना मनावा में मुतासरा लड़की की वालदा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मांगा मंडी से डॉक्टर खलील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा मंडी में एहसास कफालत प्रोग्राम कैंप का इनेकाद महंगाई की सताई अवाम के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। महंगाई की सताई अवाम अपनी समाही 12,000 की रकम लेने के लिए
दर बदर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन जब से मांगा मंडी में कैंप का इनकाद हुआ अवाम को बहुत सहूलत मुयस्सर हुई, जबकि अवाम अपनी समाही रकम लेने के लिए मीलों सफर करके लाहौर जाना पड़ता था, जो कि अब मांगा मंडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तमाम तर इंतजाम एहतमाम और कोरोना SOPs को मलहूज़ खातिर रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान शेख और सेक्रेटरी आमिर जट की ज़ेरे निगरानी समाही रकम साफ व शफाफ तरीके से अवाम तक पहुँच रही है। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की हर दिल अजीज अवामी समाजी शख्सियत फ़ख्रे पाकिस्तान साहिवाल शफकत रसूल चौधरी आसिफ रसूल चौधरी ने सपूत पाकिस्तान MNA जनाब एजाजुल हक को पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया, जिसमें UK मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ कम्युनिटी लीडरान ने पुरजोर शिरकत की और जनाब एजाजुल हक का मिसाली और वालिहाना इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। लीडरान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। पाकिस्तान के हर दिल अजीज मारूफ अवामी समाजी शख्सियत शफकत रसूल चौधरी ऑफ UK ने मखसूस सुबुल वतनी से सरशार खिताब में पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया, जिसकी अवामुन्नास में बड़ी पजीराई मिली और कहा नवाज शरीफ के पाकिस्तान के साथ और ना जरदारी इमरान खान पाकिस्तान के साथ हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्वरे पाकिस्तान इलामा इकबाल के पाकिस्तान के साथ हैं, जिसकी खातिर हमारी करोड़ों माओं बहनों ने दरियाओं के पानी से ज्यादा अपना खून बहाया और पाकिस्तान वजूद में आया। कोट अब्दुल सराना मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों का सिद्दीकी ग्रुप में शमूलियत के मौका पर वर्कर से खिताब करते हुए उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद सिद्दीकी एडवोकेट बार सदर कोट अद्दू का कहना था कि गरीब घराना से ताल्लुक है, मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। बिरादरी रिश्तेदार सिर्फ गरीब आवाम से रखी खुशी गम में बराबर के शरीक हैं। जागीरदार सरमायादार सनतकार ठेकेदार आवाम के बजाय नस्लों के बारे में सोचते हैं। इलेक्शन करीब आते ही गरीब के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। नाली सोलिंग नौकरियों के ऑफर करके सादा लोग शहरियों के झांसा देकर मुंतखब होते ही कमाई में लग जाते हैं। अवाम मदारियों को पहचान चुके। करप्शन के खिलाफ बोलने वालों ने तो इंतहा की हुई है। ठेकों में कमीशन, इदारों से भत्ता वसूली, नाजायज मुकदमात का इंदराज, कब्जा, चोरी डकैती की सरपरस्ती तक कर रहे हैं। यूथ का नारा लगाकर तब्दीली सरकार वादे भूल गए। रिलीफ पैकेज के बजाय अवाम के लिए तकलीफ पैकेज रातों रात मुसल्लत कर दिया गया। महंगाई का सुनामी गरीब अवाम को निगल रहा है। हिंजरा ग्रुप जबकि आफाक काशिफ और दीगर ने PTI छोड़कर सिद्दीकी ग्रुप में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और फूलों के हार पहनाए।